our last lecture, we have already discussed three of the accounting principles, namely money measurement principle, accrual principle, and the third one, accounting period principle. Okay. In all the three what we have discussed, as per the money measurement concept, we have already discussed that in our accountancy, whatever we will record only those items which can be measured in terms of money. So in short, the things which cannot be measured in terms of money will not be recorded in accountancy. The same way, accrual concept says what? Okay, during the year, while calculating your profit or loss for the year, you will not only record the amount received as your revenue, but also the amount which you will be receiving in future, but for which the service is provided in the current year or the goods have been sold in the current year. Same way, accounting period concept says that the complete life of the accounts, the complete life of the business will be divided into small part, and each part will be known as accounting period. That will automatically help the owner in order to analyze each year and year by year what growth we are making, and automatically the mistake which is committed in the last year, because of which my profit would have been less or my profit would have been more. So those particular mistakes can be rectified if the owner is getting summary after the end of each year. Today we are going to start with accounting concept or accounting principle number 4, that says entity concept. Entity concept says that whatever accounting, whatever recording, whatever classification, whatever summary, whatever interpretation and analysis we are doing that analysis, means we are doing complete accounting from the perspective of business. दैट इज, आप जो भी सारे अकाउंट्स बना रहे हो वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बना रहे हो, और आप ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव आप ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहे हो. इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अकाउंटेंसी विद रिस्पेक्ट टू, और यू आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनर, यू आर डूइंग अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस. सो दैट मीन्स व्हाट, फॉर यू इन अकाउंटिंग द बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट. दोनों अलग अलग इंसान होते हैं. आप अकाउंटिंग बिजनेस की करते हो, आप ओनर की नहीं करते हो. सो बिकॉज ऑफ विच आई कैन से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट होते हैं. और इसी वजह से जब बिजनेस स्टार्ट होता है या जब भी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिजनेस और ओनर के बीच में आज कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है या कोई ट्रांजैक्शन होता है, दैट मीन्स अगर किसी ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपीज दिए तो ऑटोमेटिकली बिजनेस इसको रिकॉर्ड करेगा कि उसने किसी और इंसान से 1 लाख रुपए लिए हैं एंड देयरफॉर फ्यूचर में ये 1 लाख रुपए लौटाने हैं. तो ओनर के दिए हुए पैसे, नॉर्मली अगर आप ये सोचोगे कि बिजनेस तो ओनर का ही है, तो ओनर अगर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है बिजनेस के साथ तो उसको हमें नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं. इसका मतलब अगर बिजनेस और ओनर के बीच में आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है. This is accounting concept. Accounting concept is very simple. It says that accounting is done from the point of view of the business, and accounting, the business or the owner both are separate. And because of this logic only, जो भी transaction अपन लोग ओनर के साथ करते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. बिकॉज हम लोगों को सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो भी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मॉनेटरी टर्म्स में हो रहे होते हैं वो लिखते हैं. वाई ओनर इज आउटसाइड? बिकॉज एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट. सो वी हैव कवर्ड 4 till now. Let's start with the fifth one. Fifth one says that we are discussing about matching concept. ओके, जनरली जो भी बच्चा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ता है, ट्रस्ट मी, देर इज 90% प्रोबेबिलिटी दैट दैट पर्सन विल बी कंफ्यूज विथ अक्रूवल. Okay, so try to understand matching very thoroughly and then you can compare it with the accrual concept. What matching concept says? Matching concept says that year 1, for example, I'll give you an example before explaining this. So I'll say there are 2 years, year 1 and year 2. According to accounting period concept, you already know that
अपना जो भी लाइफ होता है वो छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइडेड होता है एंड अकाउंटिंग पीरियड इज जनरली ऑफ 12 मंथ्स। तो मैंने कहा ईयर 1 और ईयर 2 जो मेरे हैं, इन दोनों ईयर्स में फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेवेन्यू कमाया, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने रेवेन्यू कमाया 20 लाख रुपीस का, और इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, मतलब ये 20 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने एक्सपेंसेस किए, और मैंने एक्सपेंसेस किए 10 lakhs के। सो जनरली व्हाट इज दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट मीन कि आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंस मैच करना चाहिए। इट मीन्स रेवेन्यू 20 लाख है तो आपका एक्सपेंस भी 20 लाख होना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी इक्वल, वी आर सेइंग दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड मैच। What it means कि अगर फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 में मेरे को 20 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो मैंने 10 लाख रुपीस की कॉस्ट लगाई ना, वो कॉस्ट भी मैं ईयर 1 में रिकॉर्ड करूंगा। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि अगर मैं कोई रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैं कोई कॉस्ट लगा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली जिस साल मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूं वो साल मैच होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो हियर इट इज रॉन्ग बिकॉज मैं ईयर 1 में जो रेवेन्यू कमा रहा हूं उसके लिए जो मैं कॉस्ट लगा रहा हूं वो ईयर 2 में बुक हो रही है। तो इसका मतलब देयर इज अ क्लियर मिसमैच कि ईयर 1 में मेरी रेवेन्यू हो रहा है और ईयर 2 में मैं एक्सपेंस बुक कर रहा हूं। देयरफॉर मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट कि अगर आप कोई रेवेन्यू अर्न कर रहे हो और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आप कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट शुड मैच the revenue. It means the cost and the revenue which is earned and which are related should be recorded in one single year and not in separate years. And automatically जैसे ही आप मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे थोड़ा सा अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको याद आने लग जाएगा कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी तो यही था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट और इसमें बहुत फर्क है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैंने कोई भी रेवेन्यू अर्न किया तो उस रेवेन्यू को या एक्सपेंस को इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मुझे रिसीव हुआ है या मैंने वो पे किया या नहीं किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं उस साल रिकॉर्ड कर दूंगा या तो जिस साल मैंने अर्न किया या जिस साल मुझे उसका बेनिफिट रिसीव हुआ। आई विल नॉट पोस्टपोन इट कि जिस साल मुझे वो पैसा मिल रहा है मैं उस साल तक इंतजार करूंगा। Matching concept, I hope it is clear. Matching concept says that if you are incurring any cost in order to earn the revenue, that in the year in which the revenue is recorded, you will also record the cost also in that particular year. So I hope you have understood matching and accrual are very different. Next is realization concept. Realization concept, it is very easy to understand, but again practically why this concept is there, because until unless आपको ये नहीं पता होगा कि जो concept आप पढ़ रहे हो वो concept आया क्यों है, तो automatically आपको अकाउंट से, because it's a practical concept, relate करना थोड़ा difficult हो जाएगा। For example ऐसे कि मिस्टर एक्स थे और मिस्टर एक्स wanted a loan of ₹10 करोड़। मिस्टर एक्स को 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए था, बट जब मिस्टर एक्स बैंक के पास गए तो बैंक ने उन्हें बोला कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़ रुपीस, तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, मिस्टर एक्स वांटेड अ लोन ऑफ 10 करोड़। He went to the bank, but bank asked him that your profit in the last year should be 5 crore rupees. So automatically now Mr. X is in the dire need of money. So automatically इसने क्या किया, ये गया और इसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, मतलब अपनी समरी बनाना स्टार्ट किया। तो आपको ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में पता ही है कि समरी कैसे बनती है। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं एंड अल्टीमेटली यू गेट योर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब इसने अपने घर जाके देखा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको पता पड़ा कि यार मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो सिर्फ 4 करोड़ हो रहा है। मतलब जब मिस्टर एक्स गया अपने बिजनेस में वापस, तो उसने जाके अपनी समरी को देखा। जब उसको समरी देखने पे, जब उसने घर जाके अपने बिजनेस में समरी देखी, तो ऑटोमेटिकली उसको पता पड़ा कि 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जब उसने देखा कि बैंक मुझसे 5 करोड़ मांग रहा है बट मेरा प्रॉफिट 4 करोड़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आज बैंक की रिक्वायरमेंट में और मेरा जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें फ़र्क है। अब मिस्टर एक्स को तो पैसा चाहिए था, तो उसने क्या किया, रेवेन्यू को उसने सोचा कि मैं प्रॉफिट 5 करोड़ कैसे करूं, या तो मैं एक्सपेंसेस को 8 करोड़ का कम करके 7 कर दूं, या फिर मैं रेवेन्यू को 12 से 13 कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ये 5 करोड़ हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक्स ने ये बोला
कि मेरा रेवेन्यू अब 12 करोड़ नहीं है, मेरा रेवेन्यू 13 करोड़ है। ठीक है, बैंक ने इसका रेवेन्यू का वेरिफिकेशन कराने का सोचा, बोले कि देखते हैं एक बार चेक करा के इसका रेवेन्यू 13 करोड़ है या 13 करोड़ नहीं है। तो अब क्या हुआ, जब एक्स का रेवेन्यू चेक किया तो पता पड़ा एक्चुअल रेवेन्यू 12 करोड़ है, और एक्स अब बोलता है, बोले कि यार 1 करोड़ का एक ऐसा ऑर्डर है जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को 1 करोड़ का किसी से ऑर्डर रिसीव होगा, और उसकी वजह से मैंने मेरा रेवेन्यू 12 करोड़ नहीं रखा, मैंने रेवेन्यू कितना रखा, 13। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे मैनिपुलेट कर देगा अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, तो फिर तो इस प्रॉफिट या लॉस जिन पे लोग रिलाय करके शायद उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे या शायद उस कंपनी को लोन दे दे, तो वो क्या होगा, उन लोगों के साथ तो चीटिंग हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट बना और उसका नाम था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक यू डोंट हैव अ राइट कि आप सामने वाले से पैसे की रिकवरी कर सको, तब तक आप उस चीज़ को अपनी इनकम या अपना रेवेन्यू नहीं मानोगे। इट मीन्स, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने बैठे, बट आपने सिर्फ पानी पिया और आपने सिर्फ मेन्यू देखा और आप वापस आ गए, तो क्या रेस्टोरेंट वाला ये बोल सकता है कि उसने आपसे रेवेन्यू अर्न किया? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर ही नहीं दिया तो सामने वाले के पास राइट ही नहीं है आपसे पैसा कलेक्ट करने का। सेम वे अगर मैं दूसरा केस लूं कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर दिया और अब आपने खाना खा लिया, क्या अब सामने वाले रेस्टोरेंट के पास राइट है आपसे पैसा कलेक्ट करने का? 100% राइट है। सो देयरफॉर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही डिफरेंस आपको बताता है कि कब आपको अपना रेवेन्यू रियलाइज करना है और कब आपको अपना रेवेन्यू रियलाइज नहीं करना, और यू कैन से कि आपको कब अपना रेवेन्यू मानना है या कब अपना रेवेन्यू नहीं मानना। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, रेवेन्यू तब मानना है जब मेरे पास राइट हो सामने वाले से रिकवरी करने का, तब मैं उसको अपना रेवेन्यू मान लूंगा, और वही रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। सो आई होप यहां तक आपको 6 पॉइंट तक 6 के 6 कॉन्सेप्ट जो अपन ने क्लियर डिस्कस किए, वो आई होप आपको क्लियर है। नाउ वी गोना स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट नंबर 7 और प्रिंसिपल नंबर 7। अभी तक हम लोगों ने 6 कर लिए हैं कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल कवर। अब अपन लोग 7 स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मैं आपको लेक्चर नंबर 5 या 6 में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनमें एक्चुअली फ़र्क क्या है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स समझ रहे हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया। जब हम आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की और प्रिंसिपल की अपन लोग प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये चीज़ें अप्लाई होती है, ठीक है। बट अभी जब मैं आपको प्रिंसिपल्स बढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको उनका मीनिंग और आपको एक एग्जाम्पल कि वो प्रिंसिपल फॉलो क्यों होता है, क्योंकि आज अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे थ्योरी तो होगी कि ये प्रिंसिपल चल रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, तो आपको मीनिंग और वो लॉजिक अभी पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में उसकी एप्लीकेशन जब अपन लोग चैप्टर में आएंगे तो आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज है, ठीक है। नाउ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज दैट कि आज अगर आप अकाउंटिंग बना रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ईयर 1 में आपने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा था ईयर 1 में अगर आप वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ईयर 1 जो है आपका, ईयर 1 में मैंने आपको कहा कि आपने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं करते तो आपका प्रॉफिट शायद जितना दिख रहा है उससे कम होता। आपने क्या किया, ईयर 2 में आए, ईयर 2 में आपने वो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल था वो इस साल फॉलो नहीं किया, क्योंकि इस साल अगर आप वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते तो आपका प्रॉफिट क्या होता, कम हो जाता। तो आपने प्रॉफिट को वापस बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपनी मनमर्जी से फॉलो करते हैं। मतलब जब उनको प्रॉफिट बढ़ाना होता है फॉलो कर लेते हैं, जब उनको वापस प्रॉफिट बढ़ाना है शायद उसको फॉलो ना करें। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रिंसिपल इट शुड बी कंसिस्टेंट
इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इट मीन्स अगर आप किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तो इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड इन द नेक्स्ट ईयर एंड इन द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन। मतलब आप अपने हिसाब से कभी भी कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं कर सकते कि अभी फॉलो कर रहे हो, बाद में फॉलो नहीं करोगे, फिर बंद कर दोगे, कभी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर लोगे, कभी प्रॉफिट कम करने के लिए। आप ये सब नहीं कर सकते। आप अगर कोई अकाउंटिंग पीरियड पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। दैट इज यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। हाँ, पर कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव लेके आ सकते हैं, बट वो कुछ सर्कमस्टेंसेस कौन से? ठीक है। तो 3 ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते वक्त अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा नंबर 1, ओके गाइस, नंबर 1 when we can change, मतलब कब हम पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो ना करके एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में बदलाव ला सकते हैं। तो देयर आर 3 सर्कमस्टेंसेस इन विच यू कैन चेंज। नंबर 1, कई बार क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब अभी डिटेल में आप लोगों को पता नहीं होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कमिंग चैप्टर्स में आई विल एक्सप्लेन यू कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। अभी आप ये समझें कि अकाउंटिंग को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सबकी एक तरह से अकाउंटिंग हो, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि हाउ यू शुड डू अकाउंटिंग। तो सब बिजनेसेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने कहा कई बार अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है कि अब ये पॉलिसी फॉलो नहीं हो सकती, अब से यही होनी चाहिए, तो आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकते हो। नंबर 2, कई बार ये होता है कि स्टैच्यूट मतलब कानून ये कहता है कि अब ये पॉलिसी आप फॉलो नहीं कर सकते, तो कानून की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए या उनको अध्ययन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव कर सकते हो। थर्ड, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको ये लगता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी अभी तक आप फॉलो कर रहे थे उसकी वजह से शायद आपकी बिजनेस की जो पिक्चर जा रही है वो बेटर पिक्चर नहीं है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, अब अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकते हो, सो दैट यूजर्स को जो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू जाना चाहिए वो अब बेटर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव कर सकते हो। तो आई होप 7th पार्ट इज ऑल्सो, 7th प्रिंसिपल इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ वी विल स्टार्ट विथ 8th। 8th इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बट मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ साथ आपको उसको कनेक्ट करना चाहूंगा एविडेंस कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, एविडेंस कॉन्सेप्ट को वेरिफिएबल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। आप देखिए मतलब क्या है। मैंने आपको कहा, जैसे भी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि पूरी अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि किसी भी यूजर के साथ चीटिंग ना हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो ओनर हो, कोई भी हो या मैनेजर क्यों ना हो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अकाउंटिंग मतलब यह है कि अपन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएं। अकाउंटिंग मतलब यह है कि यूजर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो हमने कहा कि अकाउंट्स में मतलब अगर आप मर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड करे जाओगे अकाउंट्स में अपने प्रॉफिट को ज़्यादा या कम दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वेंचर है, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है, आपको पता ही होगा इंडिया में जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन है, मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा उस पर। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई कंपनी को टैक्स कम देना है तो वो अपनी कॉस्ट ज़्यादा दिखाएगी। इसका मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर सिनेरियो 1 लूँ मैं और सिनेरियो 2 लूँ, तो अगर रेवेन्यू 10 करोड़ है और मैंने कहा एक्सपेंसेस 3 करोड़ हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 7 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30%, तो 2.1 CR टैक्स देना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू अगर 10 करोड़ है और उसमें से अगर 3 करोड़ का खर्चा माइनस किया तो प्रॉफिट आया 7 करोड़, तो इस प्रॉफिट पे अपने को फॉर एग्जांपल अजम्पशन मानते हुए 30% टैक्स देना है। तो हमें टैक्स देना है 2.1 CR। तो मैंने कहा ये 2.1 CR टैक्स देना हो सकता है किसी बिजनेसमैन को अच्छा ना लगे कि मैं कमा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को पैसे क्यों दूँ। तो हो सकता है कल को वो गवर्नमेंट को पागल बनाने के लिए या गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए वो अल्टीमेटली अपने एक्सपेंसेस 6 करोड़ दिखा दे, तो उसका प्रॉफिट बचेगा अब कितना, 4 करोड़।
4 करोड़ पे अब वो देगा 30%, तो अब क्या होगा, उसका टैक्स आएगा 1.2 CR। तो ऑटोमेटिकली अगर उसने अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया तो वो गवर्नमेंट को 90 लाख रुपीस कम पे करेगा। तो हो सकता है कई बार ऐसा हो, कोई ना कोई ओनर टैक्स बचाने के लिए या कोई और यूजर्स के साथ किसी और तरह की चीटिंग करने के लिए अपने प्रॉफिट को कम ज़्यादा दिखाए। तो ये सब रोकने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसका नाम था एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्डिंग होगी, मतलब आप अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग के पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सके। मतलब अगर गवर्नमेंट इस बिजनेसमैन के घर पे आ गई और गवर्नमेंट ने बोला बताओ 6 करोड़ का खर्चा कैसे हुआ, मतलब तुम कह रहे हो 6 करोड़ का खर्चा हुआ तो हमें बिल ला के दिखाओ, तो बेसिकली गवर्नमेंट माइट आस्क देम कि इस रिकॉर्डिंग के पीछे तुम्हारे पास एविडेंस क्या है। तो एविडेंस कॉन्सेप्ट सेज दैट इन अकाउंट्स ओनली दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड फॉर विच वी हैव द एविडेंस। तो अगर कोई ऐसी चीज जिसका आपके पास एविडेंस ही नहीं है, यू शुड नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंटेंसी बिकॉज इट माइट बी लेटर ऑन इट माइट बी रिवोक्ड, या हो सकता है आपको वो हटाने को बोला जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे रिकॉर्डिंग उन्हीं चीज़ की होगी जिनके पीछे एविडेंस होगा। अगेन लॉजिक मैंने बता दिया कि एविडेंस होना क्यों जरूरी है, अदरवाइज कोई भी आदमी कुछ भी रेवेन्यू दिखाएगा, कुछ भी एक्सपेंसेस दिखाएगा, अगर उनके पीछे वेरीफिएबल या एविडेंस कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब अपन लिंक करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट अब अगेन ट्राई टू लिंक विद एविडेंस। सी एक बात बताओ, जो बिल मिलेगा उसमें एक रेट लिखी हुई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमने एक एसी खरीदा, अब एसी खरीदने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग करी, एसी की बिल में वैल्यू दे रखी है फॉर एग्जांपल 1 लाख, मैंने जब रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी मैंने कर दिया 5 लाख, मैंने कहा मुझे उसका 5 लाख बेनिफिट मिलेगा। तो आपको नहीं लगता एविडेंस तो है क्योंकि बिल है, बट अगर आपने उसको रिकॉर्ड करते वक्त आपने अपनी मनचाही वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया तो वापस आप क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करोगे, जब भी आप अकाउंट्स में क्या करोगे रिकॉर्डिंग, तो वो किस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा, वो हमेशा रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे। तो आई होप आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट और आपका एविडेंस कॉन्सेप्ट इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो कि दोनों का मतलब क्या है। नाउ वी गोना स्टार्ट विद द 10th वन, दैट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का बहुत आसान मतलब है। गोइंग कंसर्न का ये है कि आप अभी जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी समरी बना रहे हो, वो ये सोचते हुए समरी बना रहे हो आप लोग कि मेरा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। मतलब अभी एज अ ओनर, एज अ बिजनेस, योर इंटेंशन इज नॉट टू क्लोज डाउन द बिजनेस, मतलब आप बिजनेस को कंटिन्यू करते रहोगे। सो गोइंग कंसर्न इज नथिंग दैट माई बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर अनफोर्सेबल फ्यूचर, दैट इज माई इंटेंशन इज नॉट टू क्लोज डाउन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। हाँ, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो आगे जाके जब अपन फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि उन फाइनल अकाउंट्स में कुछ बदलाव होगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसका मतलब देखो, गोइंग कंसर्न मतलब ये होता है कि माई इंटेंशन इज नॉट टू क्लोज डाउन द बिजनेस, माई इंटेंशन इज टू कंटिन्यू द बिजनेस। नाउ 11th says that dual aspect concept। सी डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको आई होप नाम से समझ में आता होगा। डुअल मतलब होता है दो, तो ऑब्वियसली डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होते हैं उन हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑटोमेटिकली उन दोनों एस्पेक्ट्स के अपन नेक्स्ट चैप्टर जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा जर्नल, उसमें हम लोग देखेंगे उन दोनों एस्पेक्ट्स के नेम हैं। एक को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट। बट अगेन आई विल जस्ट से कि आपको सिर्फ अभी इन दोनों का मतलब देखना है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। गोइंग कंसर्न, माई इंटेंशन इज नॉट टू क्लोज डाउन द बिजनेस बट माई इंटेंशन इज टू कंटिन्यू द बिजनेस। अगर आप तीनों बेसिक लेक्चर्स को देखोगे, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अगर कोई अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पहले 3 लेक्चर्स हैं वो आपको एक एक सेकंड उसमें देखना है, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग।
मैंने आपसे ये डिस्कस किया था आप अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हो, और आप जो पढ़ रहे हो उसका नाम अकाउंटेंसी कैसे है, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो अकाउंटिंग की बात करते हो और सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। उसके बाद मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक कैपिटल रेवेन्यू, कैसे पता पड़ेगा वो कैपिटल है रेवेन्यू। फिर मैंने आपसे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, देयर इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टुडे मैंने आपके साथ आई हैव डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी बेसिक पार्ट। जितने भी बच्चे होते हैं जो सीए फाइनल कर रहे हैं या सीएफए लेवल में भी पहुंच जाते हैं, बट जब वो एनालिसिस करना चालू होते हैं, और इवन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब कंपनी में बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस या इस तरह का कोई एनालिटिकल काम कर रहे होते हैं, उन बच्चों को समझने में उस काम को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जब आप इस लेवल पे इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आप इन चीज़ों से रादर देन इन चीज़ों का मतलब और प्रैक्टिकल यूज समझने के, आप हो सकता है बहुत बार सिर्फ डेफिनेशन बढ़ के आगे निकल जाओ। इसलिए आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ इट, सो दैट जब आप आगे इन चीज़ों को कभी प्रैक्टिकली यूज करें तो आपको डिफिकल्टी ना आए कि इनका एक्चुअल लाइफ में पर्पस क्या है। थैंक यू।